Welcome to Sci Learning by Swaliha Ansari. Let us begin with energy of a particle performing SHM. Look, this is point A, this is point B, and this is the mean position of the particle. Means if my particle is performing linear SHM, the total amplitude is this and this is also the amplitude. Means this is the mean position, this is the right extreme and this is the left extreme of my particle. Okay. If I say that the particle moves from here till here, so this will be my displacement x. Let me name this point as Q. Okay. If I say that this is a small displacement, then it will be dx. I will name this point as Q. This is just the schematic diagram representing the SHM. Now let us start with kinetic energy. Why kinetic energy? Because what is total energy? Total energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. Means if we have to find the energy of the particle, that is the total energy of the particle performing SHM, we should know that what is kinetic energy and what is potential energy. So for that we will first start with kinetic energy of the particle. Kinetic energy. What is kinetic energy? For kinetic energy, we will begin with, we all know that kinetic energy is half mv square, correct? So, अगर हमारा kinetic energy half mv square है, तो हम v से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमारे पास v है. v की वैल्यू हमें पता है. क्या वैल्यू थी v की? v is equal to plus minus omega under root of a square minus x square, right? So v square क्या हो जाएगा? v square will be omega square a square minus x square. ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv स्क्वायर है, इसकी जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो माय काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट? बट जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, k बाय m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m k अपॉन m a square minus x square. This m gets cancelled and my kinetic energy की value becomes half k a square minus x square. Got it? ये मिल गई मुझे kinetic energy. Now let us proceed with potential energy. ठीक है? What is potential energy? Potential energy क्या होती है? देखो, जब एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. जितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है. जब हम उसे यूज करते हैं, हम कह सकते हैं कि इट इज द वर्क डन. तो जो एनर्जी स्टोर्ड थी वही वर्क डन होती है. मीन्स अगर मैं वर्क डन निकालूं और कहूं कि वो पोटेंशियल एनर्जी, इट विल नॉट बी रॉन्ग बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी विच वाज स्टोर्ड केम आउट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन. Got it? So what is work done? I can say if a small, क्योंकि पार्टिकल हमारा स्मॉल डिस्टेंस dx मूव हुआ, हम कहेंगे कि स्मॉल वर्क dw is done. तो dw will be minus f dx, correct? Force into displacement with a negative sign. So लेकिन f क्या है? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, f is minus kx. So I can say it is minus of minus kx dx, which becomes dw is equal to kx dx. ठीक है. मुझे लेकिन पूरा वर्क फाइंड करना है. We have to find out the complete work done by the particle. ये स्मॉल वर्क नहीं चाहिए. तो what we will do, we will integrate the equation. Okay? So if we are integrating it from 0 to x means जितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया 0 से लेकर x तक के, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये मुझे क्या मिलेगा?
dw इज इक्वल टू k, तो कांस्टेंट है, x dx को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम द लिमिट 0 टिल x, तो ये हो जाएगा k x स्क्वेयर अपॉन 2। इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ के x स्क्वेयर, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल्स यूज कर रहे थे, देयर विल नॉट बी एनी कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज माय टोटल वर्क डन विच आई कैन से एज इट इज माय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर, बट एज k अपॉन m वॉज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर, अगर मेरा m यहाँ जाता है तो k क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वेयर। तो हम ये भी कह सकते हैं इसकी प्लेस पर हाफ के एक्स स्क्वेयर को हम हाफ m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज माई पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई, तो अब हम क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या मिली थी हमें, इट वाज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें हाफ के दोनों में है, कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही बचा, ये प्लस एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे ही आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो योर टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, so this was the total energy of the particle which is performing SHM। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, total energy is equal to half m omega square a square। Both the equations for total energies are correct। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, अवर टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, why I am using the word directly proportional because this is a constant and a constant plus is equal to becomes the sign of proportionality। ठीक है, और क्योंकि सब ऊपर है, कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है, इसलिए एवरीथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड नथिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, भी मैं ये ओमेगा स्क्वायर की जगह पर 2 पाई एन द होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, बिकॉज ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एन, करेक्ट। ये मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां जाके देख लेना। ठीक है, अब ये देखो, टोटल एनर्जी में ओमेगा की जगह अगर मैं 2 पाई एन यूज करती हूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ एम 2 पाई एन द होल स्क्वायर ए स्क्वायर, मीन्स ये टोटल क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, सो इट बिकम्स 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब n का हमें एक और पता है कि n इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। अगर n की जगह 1 अपॉन टी हम पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी के लिए आपके पास कितने फॉर्मूलाज हो गए, ये 2, ये 3 और ये 1, 4। चारों में से किसी भी तरीके से आप टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। गॉट इट। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। मीन्स अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं, अगर हम मीन पोजीशन की बात करें तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि मीन पोजीशन तो ये है ना,
और डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है। तो मीन पोजीशन अगर हम यहाँ पर हैं तो मीन पोजीशन पे वी आर एट जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट पे एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी वाज हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर x 0 है तो हाफ के 0 का स्क्वायर मीन्स पूरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन? काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से देखेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज नथिंग बट हाफ के ए स्क्वायर। एंड हाफ के ए स्क्वायर वॉज द वैल्यू फॉर टोटल एनर्जी। मतलब मीन पोजीशन पे इस लाइन पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन, ठीक है। अब अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें यही वैल्यू कैसे मिलेगी? ये देखो। So at extreme position, what it will give us? Extreme position पे x becomes equal to a। अगर x a के इक्वल हो जाता है तो हमारी वैल्यूज कैसे चेंज हो जाएंगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर था, x की जगह पे हमने a की वैल्यू पुट की तो हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा विच इज द टोटल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी हो गई तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी को डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी हमें 0 मिलती है या नहीं मिलती। हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जगह ए रखो, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0 means it becomes half k 0 का square and 0 का square multiplied by anything becomes 0. It means the total kinetic energy became 0. Means extreme position पे potential energy became equal to total energy. ठीक है। अब अगर मैं इसी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कैसे बनेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, तो योर टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। सो लेट अस सी द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। व्हाट विल बी द ग्राफ? अभी देखो, दिस इज माई पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग लीनियर रिसेशन। मतलब ये जो एक्सिस है मेरी, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। ये मेरी एनर्जी एक्सिस है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, करेक्ट। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो चलो मैंने ये एक लाइन बनाई टोटल एनर्जी की जो कि कांस्टेंट है। दिस लाइन इज माय टोटल एनर्जी, ठीक है। अब हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी? एट मीन पोजीशन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी was equal to total energy, करेक्ट। तो मीन पोजीशन मतलब यहाँ इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी के इक्वल थी, मीन्स यहाँ पर। और एक्सट्रीम पोजीशंस पे मतलब इधर और इधर, एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 थी। ये मेरा एक्सट्रीम पोजीशन हुआ ना, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है यहाँ भी और यहाँ पे इतना एम्पलीट्यूड है, करेक्ट। तो
यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, मतलब इधर पे थी और इधर पे थी। मीन्स अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो एक ऐसा कर्व बनेगा, करेक्ट। somewhat this will be the curve। सो ये कर्व क्या है मेरा, काइनेटिक एनर्जी कर्व है। ओके, दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी वाला कर्व, क्योंकि मैंने यहाँ पे मीन और एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज ली। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर करें हम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या थी, 0 थी, मतलब यहाँ पे थी। और काइनेटिक एनर्जी क्या, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, टोटल एनर्जी के बराबर थी, मतलब यहाँ पे थी। मीन्स अगर मैं ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ कर्व बनाऊं तो कुछ ऐसा जाएगा। तो ये वैल्यूज क्या है मेरी, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इट आया समझ में। दिस विल बी द ग्राफ फॉर योर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। इसे हम एनर्जी वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन SHM भी कहते हैं, ठीक है। दिस आर द पॉइंट्स, दिस इज द पॉइंट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो एवरीथिंग इज क्लियर। Let us now start with the derivation of simple pendulum. In this we have to find out the time period for simple pendulum. Okay. So pay attention towards the diagram. This is a rigid support. यहाँ से I am suspending a simple pendulum which is oscillating in this manner. Okay. Okay. अब वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट तुम कहीं पे भी रहो, कैसे भी किसी भी पोजीशन में रहो, बट योर वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। बिकॉज वेट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी से रिलेटेड होता है, इसके लिए वेट विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब दिस इज द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे टेंशन एक्ट करेगा, ये पाथ है, दिस इज द पाथ। यहाँ पे तुमको तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा, करेक्ट। मतलब ये वापस वहां लेके जा रहा है आपके पेंडुलम को। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x, यहाँ से ऐसा यहाँ तक के, करेक्ट। एम्पलीट्यूड है आपका। अब जो वर्टिकली डाउनवर्ड आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज वेट, इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कॉम्पोनेंट्स, टू वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स, जैसा हमने स्केलर वेक्टर्स में पढ़ा था, राइट। अब ये मेरा थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इफ दिस इज थीटा तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा, करेक्ट। अब जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले कहा कि mg sin थीटा ये क्या है, ये इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, दिस इज योर रीस्टोरिंग फोर्स। सो आई कैन से दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। Got it? Restoring force became equal to mg sin theta. लेकिन क्योंकि it is in opposite direction, we will write a minus sign here. अभी लेकिन ये सिंपल पेंडुलम के केस में ये जो थीटा होता है, इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। वेरी स्मॉल मीन्स समवॉट लेस देन 10 डिग्रीज। तो ऐसे केस में जब थीटा इज वेरी स्मॉल, ऐसे केसेस में क्या होता है, साइन थीटा बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस mg साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो हम उसे साइन थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, राइट।
देखो दिस इज द लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग एल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ ये वाला सर, ये कुछ इस तरीके से ये पार्ट बन रहा है ना, मतलब अगर मैं इसका पूरा सर्कल कंप्लीट करती तो ये मेरा रेडियस होता और ये मेरा आर्क होता, करेक्ट, जो कि x है, द डिस्प्लेसमेंट, ये l है। मतलब ये एंगल जो है, इंस्क्राइब्ड एंगल, ये क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, मीन्स योर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन एल, मीन्स थीटा की ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, तो f क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, करेक्ट। अब हमें क्या मिल, देखिए यहाँ पे m मास है, कांस्टेंट है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, मीन्स यहाँ पे आई कैन से दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अगर f माइनस x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो आई कैन से दैट द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, because as I have mentioned in the first lecture of oscillation that f is proportional to minus x is the identity card of SHM. So here I can say that the pendulum, simple pendulum performs linear SHM. Got it? So moving further, अब देखो हमें ये पता है कि फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। सो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बिकम्स फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास है तो फोर्स का फॉर्मूला तो अभी हमें मिला था, क्या था, माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। तो एफ की जगह हम लिखेंगे माइनस एम जी एक्स अपॉन एल द होल अपॉन एम। एम और एम कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन क्या बचा, माइनस जी एक्स अपॉन एल, करेक्ट। अब हमें लेकिन ये भी पता है कि एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। सो इफ एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर विल बी ए इधर आके ए अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम द रूट ऑफ ए अपॉन एक्स, राइट। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बिकेम योर ओमेगा। सो कंसिडरिंग दिस आई कैन से acceleration per unit displacement is equal to g upon l, correct। why g upon l, ये देखो, so acceleration displacement became equal to g upon l। why, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जो देखा था, क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल, ये एल यहाँ पर आया तो ए अपॉन एक्स बिकेम इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल, राइट। सो उसके हिसाब से इट बिकेम इक्वल टू जी अपॉन एल। जी अपॉन एल इज नथिंग बट योर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा स्क्वायर। गॉट इट? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द टाइम पीरियड। तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है। टाइम पीरियड क्या होता है, हम पहले ही फॉर्मूलाज देख चुके हैं। इट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमने अभी निकाली, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। सो इट विल बी नथिंग बट g अपॉन एल। क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट g अपॉन एल। क्यों g अपॉन एल, क्योंकि एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट तो g अपॉन एल है। अब अगर हम इसे ऊपर लेकर आए तो ये क्या होगा, 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, करेक्ट। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम क्या होती है, सेकेंड्स पेंडुलम वो होती है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का होता है, ठीक है। अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड का है तो उसके हिसाब से हमारे पास
लेंथ क्या होनी चाहिए, मीन्स अगर हम एक पर्टिकुलर लेंथ निकालना चाहें कि हमें सेकेंड्स पेंडुलम बनानी है तो वो लेंथ क्या होनी चाहिए स्ट्रिंग की, वो देखो हम कैसे निकालेंगे। हमें ये पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। अब हमें ये पता है कि सेकेंड्स पेंडुलम के लिए टी जो है वो 2 होना चाहिए, 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। 2 दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा स्क्वायर करने पे 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। एल और पाई दोनों के टर्म्स को यहाँ लेके जाओ तो हमें लेंथ जी और पाई स्क्वायर को यहाँ लेके जाओ, क्या मिलेगा लेंथ मिल जाएगी। क्या हो जाएगा ये जी अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल। मीन्स अगर आपके पेंडुलम की लेंथ जी अपॉन पाई स्क्वायर है तो वो पेंडुलम आपका सेकेंड्स पेंडुलम कहलाया जाएगा। क्योंकि जी की वैल्यू वेरी होती है उस हिसाब से सेकेंड्स पेंडुलम के स्ट्रिंग की लेंथ अर्थ की पोजीशन के हिसाब से चेंज होती जाएगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गॉट इट? So with this we finishes today's lecture. Let's meet you with the next topic again. Till then, bye.